Hello friends, welcome back on my channel. Today in this video we will discuss about T2 space और होस्ट्रोफ स्पेस। मैं T0 एंड T1 की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस T2 space. Then definition is a topological space X2 is a T2 space or hostrov space if it satisfies the following axioms of hostrov. If x and y are two distinct points of X, then there exist two disjoint open sets, one containing X and the other containing Y. Means कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है X, then हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है X एंड Y, उनके करस्पोंडिंग हमें टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए, और वो भी इस टाइप से मिलने चाहिए कि फर्स्ट कंटेन X and the other contain Y. Then we said X2 is a T2 space, and remark is every T2 space is a T1 space and T1 space is a T2 space, T0 space. And obviously T2 T1 space है, T1 T0 है, then T2 क्या हो गया? T0 space. And second remark is let X2 be a T2 space and tau star is greater than equals to tau, then X2 star is also a T2 space. X2 कोई T2 space है and tau star topology है which is greater than equals to tau, then X2 star is also a T2 space. And T2 space के अब कुछ examples हैं. First example is any discrete topological space X2 with mod X is greater than equals to 2 is a T2 space for X is not equals to Y in X. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे विच इज़ X containing X and Y containing Y. Then discrete topological space is a T2 space. And second example is any metric space is a T2 space. सबसे पहले हम metric space देख लेते हैं क्या होता है. Metric space let X be a non-empty set. A mapping D X cross X to R is said to be metric from X cross X to R if D satisfy the following conditions. First property is M1 dxy is equals to 0. dxy पे वैल्यू 0 कब देगा? when x is equals to y. And second property is M2 dxy is equals to dyx which is symmetry property. And third property is M3 dxy, हमें dxy की वैल्यू चाहिए. मीन्स ये कह रखा है कि सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, हमें dxy की वैल्यू चाहिए, देन हम इनके पॉइंट इनकी पोजीशन चेंज कर दे तब भी उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए. देन दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सिमेट्री प्रॉपर्टी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डी एक्स वाई, हमें डी एक्स वाई चाहिए, देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई विच इज़ ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी. एंड विच मैपिंग satisfy the following conditions. एंड जैसे कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड अ मैपिंग, हमने कोई मैपिंग डिफाइन की डी एक्स क्रॉस एक्स मीन्स कोई सेट है उसका खुद ही के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर आर, और हमें कोई डी इस टाइप से मिलता है कि वो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन हम बोलेंगे डी इज मेट्रिक ऑन एक्स. I repeat, D is metric on X and a pair XT is called metric space. अब एग्जाम्पल देखते हैं कि any metric space is a T2 space. Let XT be a metric space and let tau be the topology on X. Tau है induced topology on X by the metric D. Let X is not equals to Y in X, then x इज नॉट इक्वल्स टू वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, देन डी एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू आएगी.
then dxy is equals to r is greater than 0. Then s x r by 2 and s y r by 2 are two disjoint open sets containing x and y respectively. हमें two open sets मिल जाएंगे which is containing x and y. Then we said metric space is a T2 space. And third property is usual topology is a T2 space. Let हम two disjoint point लेके चलते हैं रियल लाइन के. Then उनकी लेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन 0 एंड हमने मान ली r. देन टू ओपन इंटरवल मिलेंगे हमें x माइनस आर बाई 3, एक्स प्लस आर बाई 3, वाई माइनस आर बाई 3, वाई प्लस आर बाई 3. टू ओपन सेट्स मिल गए. ये कंटेन कर रहा है x को और ये कंटेन कर रहा है y को. देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें टू ओपन सेट मिल गए, डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए. देन यूजुअल टोपोलॉजी इज अ T2 space. And non-T2 space, any indiscrete topological space X2 is not a T2 space. Indiscrete topological space है वो T0 space भी नहीं बनती, T1 space भी नहीं बनती एंड T2 space भी नहीं बनती. एंड थर्ड एंड अब देख लेते हैं इसकी कैरेक्टराइजेशन एंड प्रॉपर्टीज़ की थ्योरम. एंड स्टेटमेंट है लेट X2 be a topological space, then X2 is a T2 space. X2 T2 space बनेगा if and only if कब the intersection of all closed neighborhood of a point x in x is singleton x. जो x है पॉइंट x का, उसकी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड नेबरहुड क्या बनेगी? सिंगलटन x. हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि X2 है वो T2 स्पेस है. देन रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू सिंगलटन x. देन हम पॉइंट लेके चलते हैं y बिलोंग्स टू इंटरसेक्स y, हम इंटरसेक्शन से लेके चलते हैं. देन सच दैट y इज नॉट इक्वल्स टू x as X2 be a T2 space and x is not equals to y in x. X2 है वो T2 space है. देन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए हमें टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे. देन देयर एग्जिस्ट जी एच बिलोंग्स टू टो सच दैट x बिलोंग्स टू g and y बिलोंग्स टू h and g इंटरसेक्शन h इज इक्वल्स टू एम्प्टी बिकॉज ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट ओपन सेट्स है. जब इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो देन जी कंटेन किस में करेगा? जी एंड एच एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते. देन जी किस में कंटेन करेगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में, एच के कॉम्प्लीमेंट में. देन हैंस एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी कंटेन्ड इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच. But this shows that x minus h is a closed neighborhood of x. x minus h है वो ओपन है. then x minus h क्या होगा? closed. then but this shows that x minus h is a closed neighborhood of x but by the choice of but the choice of y हमने कहाँ से लिया? intersection of all closed neighborhood of x. then y किससे बिलोंग कर गया? x minus h से, which is a contradiction because x and y के टाइप से लिए हमने distinct points. then hence intersection of n is a closed neighborhood of x is equals to singleton x. अब इसका कन्वर्स लेके चलते हैं. let intersection n is a closed neighborhood of x is equals to singleton x for each x in x. एंड रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि x है वो T2 स्पेस है. देन हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलते हैं x के. हैंस y डजेंट बिलोंग्स टू सिंगलटन x इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इज अ क्लोज नेबरहुड ऑफ x इम्प्लाइज y किससे बिलोंग नहीं करेगा? नेबरहुड से. फॉर सम क्लोज नेबरहुड n ऑफ x. as n is a neighborhood of x, n है वो neighborhood है x की. then there exists an open set g such that x किससे बिलोंग कर गया? g से and g कंटेन किस में? n में. thus for x is not equals to y in x, जब
वाई है वो एन से बिलोंग नहीं कर रहा, देन वाई किस में चला जाए, कॉम्प्लीमेंट में। देन देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स जी एंड एक्स माइनस एस, जो है ये एन है वो ऑल क्लोज नेबरहुड है, देन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। देन एक्स माइनस एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस एस, एक्स माइनस एन। हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए। देन दिस shows that X is a T2 space.